DivaScript. Code like a pro. Hello, Aryaman. Welcome to DivaScript. How are you? Yeah, hi Diksha. I'm doing good. Thank you for giving me this opportunity. How are you doing? I'm doing good too. Thank you for asking. So स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन दो, आपका ग्रेजुएशन ईयर, कॉलेज बैकग्राउंड और गूगल में एग्जैक्टली रोल क्या है आपका? Yeah, sure. So I am Arman Sethi, a software application developer apprentice at Google and a 2024 CS graduate from a Guru Nanak Dev University. Actually, I began my career at a service-based company in Noida, all digital technologies, where I am owning my all professional skills, and that skills was very pivotal in my transferring a role from a service-based company to a product-based company. I'm building here a good and impactful projects for the real world solutions. I have always prided myself as a balanced achiever, as I'm who always focused on studies as well as on the sports. I'm so curious about solving the some good and technical problems, while I'm also very curious about having a good badminton or a cricket match, because I believe that staying active in the courts keeps me disciplined and consistent behind the keyboard. Thank you. That's great, that's great. So गूगल में अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस? So yeah, this is the purely off-campus opportunity, but मैं अभी उस पोस्ट को प्रॉपर कैचअप नहीं कर पा रहा कि मैंने वो पोस्ट कहाँ पे गो थ्रू करी थी, कि वेदर ऑन अ सोशल मीडिया और जॉब हंटिंग प्रोफाइल दैट इज लिंक्डइन और नौकरी. बट मैंने ये गूगल के कैरियर साइट पे आफ्टर सीइंग दैट पोस्ट, मैंने ये गूगल के कैरियर साइट पे जाके इस रोल को डायरेक्टली अप्लाई करा था इन अक्टूबर 2024. ओके, सो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, एग्जैक्टली कितने राउंड थे और हर राउंड में क्या क्या पूछा गया? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अक्टूबर 2024 में अप्लाई करा था फॉर दिस रोल, एंड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस इट टुक मी लाइक 6 months long period for me. In February 2025, in the last week, I got a call from the recruiter itself, that hey, you have applied for this role. And I was like, मैं भूल चुका था उस चीज को कि मैंने अप्लाई भी करा था, बिकॉज द पीरियड वाज अ वेरी लॉन्ग पीरियड. Hey, you have applied for this particular role, and are you ready for the interview? And I was in the moment to realize कि मैंने ये apply करा भी था या नहीं, because at that moment I was applying a lot of roles and all that thing. So then I answered them and I said, okay, give me a perfect date which matches with your time. बट वो कहते कि ये टेलीफोनिक राउंड है, तो ये आपको ऑन द मोमेंट ही देना पड़ेगा, एंड मेक श्योर कि जो ये आपका टेलीफोनिक राउंड है ये एलिमिनेटरी राउंड है, और अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद भी जो राउंड्स होंगे वो सारे भी एलिमिनेटरी राउंड्स होंगे. तो यस, तो उसी मोमेंट पे मेरा टेलीफोनिक राउंड हुआ, जिसमें a lot of questions would there. Some are from the behavioral context and some are from the past experience from my companies, कि किस projects पे मैंने काम करा है, किस tech stack पे मैंने काम करा है. And behavioral questions, like as we all know, कि some are the situational questions that you are having some conflicts with your team members, how do you solve them. And एक क्वेश्चन ये था कि अगर आप मतलब उनका अगर मैं बोलूँ कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था कि अगर आप गूगल का कोई एक प्रोडक्ट चूज करते हैं तो उसके आपको कुछ प्लस प्रॉस एंड कॉन्स बताने हैं. तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी कि टू चूज अ वन प्रोडक्ट एंड डिस्क्राइब सम ऑफ द प्रॉस एंड कॉन्स फॉर देम. सो मेरा आंसर ये था कि मैंने गूगल मैप्स को चूज करा था for that thing, because as we all know that from a 10-year-old kid to a 50-year-old person, all are using Google Maps in all the ways, but there are some flaws in them. I know they have also recovered that thing from the system, but there are some things कि जो मैंने उस moment पे discuss करे थे. तो yes, these are the set of the questions they asked. ओके, सो ये था टेलीफोनिक राउंड, फर्स्ट राउंड. उसके बाद क्या राउंड्स हुए? यस, तो विद इन द सेम डे मेरे को वापस से कॉल आया कि आपका जो टेलीफोनिक राउंड था ये कंप्लीट हो गया है. अब जो नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू होगा वो होगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू, विच इज गोइंग टू हैपन
आफ्टर 1 वीक। तो आपके पास पूरा एक 1 वीक का पैनल है, आप उसमें अपना प्रिपेयर कर लीजिए और अपना गो थ्रू कर लीजिए जो स्किल्स को आपने करना है। तो हम आपका एक शेड्यूल टाइम एलोकेट कर देते हैं, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो दे डेडिकेटेड अ 45 minute slot for the interview, and the interview was conducted by a Google employee, which is based out in other location as well. तो नॉर्मल उन्होंने एक मेरे को वेलकम करा, एंड देन उसके बाद उन्होंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन का पेस्ट कर दिया सेट। एंड आफ्टर दैट वो क्वेश्चन को थोड़ा मेरे को एनालाइज करने में टाइम लगा, बिकॉज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एंड उसको एनालाइज करने के बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा, एंड दैट क्वेश्चन वर्क वेल फॉर मी। एंड उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पेश करा, बट सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वाला था। तो उसमें जैसे कि उन्होंने मेरे को हेल्प करी थोड़ा हिंट्स देने में, बट नॉट डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली उन्होंने हेल्प करी हिंट्स देने में, एंड देन आई गो फॉर दैट थिंग, एंड दैट ऑल्सो वर्क फॉर मी। बट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा उसमें पूरा टेस्ट केस नहीं चला था। लाइक if there are I'm just taking an example. If there are 10 test cases, so I am able to solve 9 test cases for that thing. तो यस, फिर उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया, एंड द 45 मिनट्स का स्लॉट थोड़ा एक्सटेंड हो गया था क्योंकि मेरे को थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग गया। एंड देन द इंटरव्यू हैड सम बिहेवियरल क्वेश्चंस अगेन फॉर मी, एंड दैट वेंट फॉर 55 मिनट्स। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपका जो रिजल्ट है वो उसके एचआर के साथ शेयर कर देंगे, एंड देन वी विल सी फॉर दैट थिंग। एंड आफ्टर दैट within the 1 day, मतलब after completion of the interview and within the gap of 1 day, I got a call from the recruiter कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है, अब सेकेंड राउंड आपका डे आफ्टर टुमारो है। तो आप ये थोड़ा राउंड पिछले वाले से टफ होगा, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। तो उन्होंने मेरे को एक बेट ऑफ थोड़ा डर दे दिया कि ये उससे भी टफ होगा। तो लाइक आई वाज फीलिंग वेरी नर्वस फॉर दैट थिंग, एंड देन अगेन आई प्रैक्टिस्ड माय होल कोडिंग क्वेश्चंस एंड ऑल दैट थिंग, एंड आई वेंट फॉर दैट थिंग। Again, the slot was booked for a 45 minutes. This is, I'm talking about, this is for the technical round 2. तो yes, तो इसमें again the interview was conducted by another full-time employee of a Google, and they asked me with the first question. I go for that, and I solved that second question, and then the third question comes, which is a very tricky problem I solved on the lead code, which is a very famous coin change problem. एंड तो उन्होंने वो क्वेश्चन को पेश करा, मतलब मेरे को तब थोड़ा वो आई वॉज फीलिंग वेरी शिवरिंग ओवर देयर कि मेरे को नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट देन आई रिमेम्बर्ड द वर्ड्स ऑफ माई मेंटर्स एंड माई टीचर्स कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो उतना छोटा सोल्यूशन होता है। तो मैंने उस बड़ी प्रॉब्लम को पहले सब पार्ट्स में ब्रेक करा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करा, एंड देन आई गो फॉर द फ्यूचर सोल्यूशन फॉर दैट थिंग। एंड उसमें भी मेरे पूरे टेस्ट केस नहीं पास हुए थे। अगर मतलब जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल 10 टेस्ट केसेस, तो आई एम एबल टू पास 6 to 7 टेस्ट केसेस। एंड देन उसके बाद जो उसकी विंडो भी थी 45 मिनट्स की विंडो थी, बट वो भी एक्सटेंड हुआ 1 hour 5 minutes आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द 3 क्वेश्चंस। सो मेरा उसके बाद फिर उन्होंने फाइनल राउंड मतलब फाइनल कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जो कि प्रॉपर बिहेवियरल थे, एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये रिजल्ट एचआर के साथ सबमिट कर देंगे, एंड देन उसके बाद आपको एचआर रिक्रूट करेगा। तो आफ्टर 10 days फ्रॉम दैट इंटरव्यू, आफ्टर 10 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एचआर कि आप अर्ली मतलब आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, एंड आपको अब ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें वो डिस्प्ले करने होंगे। आई एम नॉट श्योर डिस्प्ले इज एक्चुअल वर्ड, बट यस, आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होंगे हमारी इस ईमेल पे। एंड देन आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स है रिलीविंग लेटर, एंड यस, तो और आपका जो देयर आर सेट ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अपलोड कि फिर वो वेरीफाई कर सकते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन, एंड जो आपको किट्स वगैरह लैपटॉप किट्स डिलीवर होनी थी वो किस एड्रेस पे डिलीवर होनी थी। सो या, दिस इज द होल प्रोसेस फॉर मी। ओके, थैंक्स आयमन, बहुत डिटेल में बताया आपने सारा प्रोसेस। तो जैसे कि आपने बताया 2 टेक्निकल राउंड्स थे डीए से बेस्ड, तो डीए से बेस्ड कोडिंग क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या था, और अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस याद है तो?
So yes, the difficulty level was easy to medium, not beyond that. But some, like I have discussed with other people, कुछ ने a hard problem encounter करी है, but the hard problem का number जो count था वो बहुत ही कम था. तो मैंने अभी जैसे आपसे क्वेश्चन का सेट डिस्कस किया कि एक कॉइन चेंज प्रॉब्लम मेरे को याद है, बट मेरे को अभी राइट नाउ अदर प्रॉब्लम्स याद नहीं है, बट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आप अपने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देना फिर. या श्योर श्योर, हम अपनी डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे. ओके, सो इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो आपसे जो आपको इनिशियली ना आता हो, तो आपसे वो क्वेश्चन हो पाया या नहीं हो पाया, और अगर हो पाया तो आपने उसको कैसे अप्रोच करा? यस, तो जैसे कि मैंने एक बोला कि क्वाइन चेंज प्रॉब्लम वेरी फेमस प्रॉब्लम ऑन अ लीड कोड. तो उसमें एज इट इज प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें कुछ देर आर मल्टीपल लाइंस, बट द ऑल द लाइंस आर अलाइनिंग टू द क्वेश्चंस. मतलब ये था कि हमें सारी लाइंस को स्टडी करना पड़ना था, हम कोई भी लाइन स्किप नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑल द लाइंस आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो ये प्रॉब्लम काफी बड़ी थी जिसको देख के मैं थोड़ा डर गया. मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही आई वुड से कि 14 to 15 लाइंस लॉन्ग थी. तो मेरे को लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा. फिर जैसे कि मैंने अपने मेंटर से सीखा है, अपने टीचर से सीखा है, उन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई थी कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसको उतना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो और उस प्रॉब्लम को कंटिन्यू करो. तो मैंने यही अप्रोच सॉल्व करी. थोड़ा सा मैं उस अप्रोच को स्टार्ट करने में भी डर रहा था, बट द इंटरव्यू वाज सो गुड. उसने मेरे को ऐसे हिंट्स दिए जो कि मेरी ही अप्रोच के साथ अलाइन कर रहे थे. सो आई बिकेम कॉन्फिडेंट एंड आई गो फॉर दैट प्रॉब्लम एंड आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम. बट मैंने वो पूरी प्रॉब्लम के टेस्ट केस नहीं चले थे, बट ये लास्ट के 2 या 3 एज केसेस मिसिंग रह गए थे मेरी उस प्रॉब्लम के. तो बट इंटरव्यू ने कहा था कि ओके यू गॉट द लॉजिक, तो अब हम सबमिट करते हैं क्योंकि टाइम लिमिट भी एक्सीड हो रहा था. ऑलराइट, तो ये तो बात थी सिलेक्शन प्रोसेस की. अब थोड़ा बात करते हैं गूगल के वर्क कल्चर की. तो गूगल का वर्क कल्चर हम सबको ड्रीमी लगता है, बट आपने वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस करा है, तो आपके हिसाब से क्या चीज जेन्युइनली अच्छी है और क्या चीज थोड़ी आपको ओवररेटेड लगती है? सो यस, अभी आपने जैसे वर्ड बोला कि वो सबको ड्रीमी लगता है, तो फॉर मी इट इज ऑल्सो लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू. फ्रॉम अ gmail.com to a google.com, it is a very huge transition for me, राइट. and I am very blessed for that thing. And जो एक्चुअल चीजें रियल है वो यही है कि देर आर द थिंग्स कि जो रिस्पेक्ट द यूजर, रिस्पेक्ट द पॉलिसी. कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जिसमें आप स्टक कर चुके हो और आप अब अपने किसी सीनियर या अपने किसी कुलीग के पास रीच आउट करते हो फॉर दैट थिंग, दे विल मेक श्योर कि वो आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें जो कि बेनिफिशियल हो. बट अगर उनके पास टाइम नहीं है तो दे आर सो गुड कि वो आपको सामने से रिस्पॉन्ड करते हैं कि राइट नाउ आई एम बिजी, विल सेट अप लेटर, एंड देर ऑल्सो फॉलो अप फॉर दैट थिंग. और वो लेटर में भी आपके साथ अलाइन करके आपकी प्रॉब्लम को हेल्प करते हैं. एंड यस, द all the things we got over there, like the awesome food, the awesome office premises, we all get everything over there, from a transportation to a proper nap room. It's good things we are having in our offices. And yes, मैं तो उसको एक स्लैंग में डिफाइन करता हूँ नानी का घर, क्योंकि नानी का घर में कैसे राइट. हमारे लिए सब चीजें अरेंज हो जाती हैं वैसे ही. एंड यू ऑल्सो आस्क फॉर अ क्वेश्चन कि जो थिंग्स ओवररेटेड है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ओवररेटेड थिंग्स हैं, बट मैं उनको एक ऐसे पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि वो मेरे लिए मोटिवेशन है टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्यूचर एज वेल. ओके, तो मतलब जो एक्चुअल हाइप है वो ट्रू है, कुछ ऐसे ओवर हाँ, हाइप, कुछ ऐसा फेक नहीं. यस यस, दैट इज ट्रू. वो प्रॉपर है, वहां पे दैट आपको हर चीज मिलेगी. दैट्स ग्रेट एक्चुअली. इससे हमारे व्यूअर्स को काफी मोटिवेशन मिलेगा गूगल ज्वाइन करने का. Yes. तो इंटर्न्स या जूनियर्स या फ्रेशर्स के साथ कैसे एक्सपेक्टेशंस रहती हैं? प्रेशर होता है या काफी लर्निंग फोकस्ड एनवायरनमेंट रहता है? सो इंटर्न्स या फ्रेशर्स या अगर हम अप्रेंटिसेस की भी बात करें तो हम्म. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको आके एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंप दिया जाएगा. हम्म. लर्निंग फोकस एनवायरनमेंट होता है. स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल स्केल एंड देन विल एक्सीड इनटू द बिगर पार्ट्स. तो ऐसा नहीं है कि हम जाते ही कहेंगे कि आपको प्रॉपर एक मैप्स एप्लीकेशन में एक पूरा फीचर बिल्ट इन करना है. और वहां पे जो एक गुड थिंग ये है कि ऑल द थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू द टीम्स.
मतलब अगर हमने फ्रंट एंड को डिजाइन करना है तो एक फ्रंट एंड की कोर टीम है फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। अगर हम चलो जीमेल की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर जीमेल में हमारे पास फ्रंट एंड है, बैक एंड है, कनेक्शंस है, माइक्रो सर्विसेज है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स की जो हमें कनेक्ट करके एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनानी है। तो ये नहीं है कि जो एक पर्सन है वो दो मल्टीपल टास्क पे काम कर रहा है, कि वो बैक एंड भी देख रहा है और वो फ्रंट एंड भी देख रहा है। फ्रंट एंड की अलग टीम होगी और बैक एंड की अलग टीम होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस फेज में हायरिंग हुई है, किस रिसोर्स में हायरिंग हुई है, तो उसमें लेवल्स के अकॉर्डिंग ये होगा। अगर तो जूनियर लेवल है तो ये नहीं कि आपको पूरा ही बिल्ड फीचर दे दिया जाएगा कि आप इम्प्लीमेंट करो, पहले उस फीचर के साथ आप थोड़ा गो थ्रू करो, एंड देन उसके बाद आप उस फीचर में से लर्निंग को इंक्लूड करो कि आप क्या लर्न कर रहे हो, एंड देन एबल टू गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। अगर कोई फ्रेशर या कोई स्टूडेंट गूगल को एम कर रहा है तो कौन सी एक तो ऐसे स्किल्स हैं जिस पे उसको जेन्युइनली फोकस करना चाहिए? तो जो एक दो स्किल्स, देयर आर मल्टीपल स्किल्स, बट मैं तो यही कहूंगा कि एक तो क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो आपकी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये स्किल्स पे फोकस करना आपका मेजर वो होना चाहिए। ओके, ओके, ऑलराइट। सो अगर कोई एवरेज कॉलेज से है या कोई टियर 3 कॉलेज से है या कोई ऐसे कॉलेज से है जहाँ गूगल ऑन कैंपस हायर नहीं करती, तो गूगल जैसे कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकती है उस स्टूडेंट को? तो जैसे कि आई एम द एग्जांपल फ्रॉम दैट थिंग कि मेरे हम्म। कैंपस में गूगल नहीं आता, बट मैंने भी ऑफ कैंपस अप्लाई करा था। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये होना चाहिए कि आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग इन द सेंस कि टेम्पलेट गुड होना चाहिए। आई नो कि सभी कॉलेज से पास आउट होंगे, किसी के पास कुछ इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट विद इन द कॉलेज आप उस चीज को शो कैसे कर सकते हैं? एक तो आपका रिज्यूमे गुड होना चाहिए, टेम्पलेट गुड होना चाहिए, सिंगल पेज रिज्यूमे होना चाहिए, फॉन्ट्स एंड जो स्टाइल्स हैं वो प्रॉपरली अलाइंड होने चाहिए। एंड उसके बाद जो आपके फिर मेजर सेक्शन आता है प्रोजेक्ट्स का, प्रोजेक्ट्स आपके गुड होने चाहिए, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को चूज कर रहे हो तो उनकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि आप उनको ही क्यों चूज कर रहे हो। मतलब आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, फ्रॉम ई कॉमर्स वेबसाइट से लेके फूड ऑर्डरिंग एप्स तक। और अगर हम आज की डेट में हम उनका क्लोन भी बना रहे हैं तो हम एक ऐसा यूएसपी क्या उसमें डाल रहे हैं कि हम उस क्लोन को बना रहे हैं। नो डाउट हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाने चाहिए जो हमारी थिंकिंग मतलब हमारी लर्निंग के लिए हो, बट ऑल्सो उन चीज में एक यूएसपी भी ढूंढो कि अगर आप ये बना रहे हो तो आपके पीछे का एम क्या है, इस चीज को बनाने के लिए आप इसको कैसे स्केल कर सकते हो। एंड फिर मेरा सजेशन है कि गो फॉर द सर्टिफिकेशंस, कि जैसे आजकल कितने सर्टिफिकेशंस लाए हुए हैं, गूगल के सर्टिफिकेशंस लाए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, amazon के हैं। तो गो फॉर द सर्टिफिकेशन एंड ऑल्सो इंक्लूड देम इन योर रिज्यूमे। यस। आपने मेंशन करा प्रोजेक्ट्स का, तो आपने अपने कॉलेज लाइफ में कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए थे और वो कैसे हेल्पफुल रहे आपकी गूगल के सिलेक्शन में? तो मैंने जो मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था उसमें प्रोजेक्ट्स के सेक्शंस में एक तो मेरा कॉलेज लेवल के प्रोजेक्ट्स थे, और एक मेरा जो इंटर्न लेवल का मैंने इंटर्नशिप करी थी उस लेवल का प्रोजेक्ट था। तो उसमें मैंने कॉलेज लेवल में मेरे प्रोजेक्ट्स थे जैसे फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने उसकी एक प्रॉब्लम को एनालाइज करा था कि अगर हम किसी एक फार्मेसी की सिस्टम पे शॉप पे जाते हैं, तो अगर हमें कुछ चीजें को लेना होता है, ऐसा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं सोचा था, मैंने ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू के ओनर के व्यू से सोचा था। तो उनके पास कोई ऐसी डेडिकेटेड एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने बुक्स पे नोट्स बना रहे होते हैं कि ये वाली मेडिसिन का स्टॉक खत्म हो गया, ये वाली मेडिसिन का स्टॉक इतना बचा है, अब इस मेडिसिन को हमने ऐड करना है। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के एक एप्लीकेशन बनाई थी कि व्हाई नॉट टू मेक एन एप्लीकेशन जो कि एक ऑनर या एडमिन होगा, और उसके अंदर जो वर्कर्स होंगे वो उसको अपनी सेपरेट प्रोफाइल्स के अंदर लॉग इन करके वो देख सकते हैं कि जिस पर्सन ने जौन सी मेडिसिन की सेल करी उसका स्टॉक अपने आप एक्चुअल में काउंट बढ़ता जाए या डिक्रीज होता जाए, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द माई मेन फंडा फॉर दैट थिंग। एंड द अदर प्रोजेक्ट वाज कि मैंने बोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के प्रोजेक्ट पे काम करा था, तो वो मैंने अपना मेंशन करा था उसमें। ओके, और मैं आप? उसको थोड़ा डिटेल में नहीं उसको मैं थोड़ा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि आई एम बाउंड विद दैट थिंग, ओके, बट यस। नहीं, और आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में ये पूछा गया था आपसे प्रोजेक्ट्स? यस,
यस। तो मेरे से मेरा मतलब कॉलेज लेवल का प्रोजेक्ट नहीं पूछा गया था, बट मेरा जो इंटर्नशिप लेवल का प्रोजेक्ट था जो कि बोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज का था, उस पे पूछा गया था कि आपने इसमें कैसे काम किया और आपका रोल क्या था इस चीज ओके, और उस पे ये कुछ चीज क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई या सिर्फ डिटेल्स पूछी गई? क्रॉस क्वेश्चनिंग उस प्रोजेक्ट में लेके वैसे तो डिटेल्स पूछी गई, बट क्रॉस क्वेश्चनिंग इसमें इस वे में हुई कि इन एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियरल पॉइंट, कि अगर आप एक फीचर लेके जा रहे हो या अगर एक आप मेथड लेके जा रहे हो बट आपकी टीम में कन्फ्लिक्ट है कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो आपने कैसे कन्विंस करा और आपने कैसे उस चीज को फ्यूचर स्कोप से बताया कि ये बेनिफिशियल है। ओके, दैट्स Yes. सो अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे होते तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ्स का आइडियल रोड मैप कैसा होता? आइडियल रोड मैप तो आइडियल रोड मैप इज वन ऑफ द गुड थिंग, बट मेरे अकॉर्डिंग तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। एंड उसके बाद हमारे पास एक ये रोड मैप होता है कि पहले हम टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स को चूज करें, डायरेक्टली जंप मत करें। पहले एक टॉपिक पढ़ लिया, जैसे लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एरेस, क्योंकि वही हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है। अगर हमने एरेस को पढ़ लिया तो हम एरेस के क्वेश्चन को सॉल्व करें, रेदर देन कि एरेस पढ़ने के बाद हम लिंक लिस्ट पे जंप कर जाए। तो मतलब सॉरी, स्टैक को फॉलो नहीं करना कि मतलब अगर प्रीसीडिंग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास जितने भी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें क्वेश्चंस मिक्स्ड अप होते हैं। तो ये हमारा वो सॉरी, तो इसमें हमें ये चूज करना है कि हम पहले प्रॉब्लम को पढ़ें, उसको प्रैक्टिस करें और उसके बाद जाके प्रॉब्लम के स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उससे क्या होगा कि हम प्रॉब्लम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और हमारा रिकॉर्ड भी बना रहेगा। क्योंकि अगर हम एक अपने नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर हमने एक टॉपिक को पढ़ा है तो उसके ही नोट्स होंगे, फिर हम जब वो टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव कर जाएंगे। तो लास्ट में एक क्विक Q&A करते हैं जिसका आप 1-2 यस। वर्ड्स में आंसर दे सकते हो। ठीक है, सो डीएसए या डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो अगर मैं इंडस्ट्री एनरिच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, दोनों में पैरेलल जॉब ओपनिंग्स हैं। तो मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा कोई वन या टू सिंगल वर्ड का आंसर नहीं है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, तो जिसमें आपको मजा आता है आप वो यूज करो। अगर आपको डेवलपमेंट में मजा आता है तो आप डेवलपमेंट में मास्टरी एनरिच कर लो। और ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के रोल्स नहीं है, गूगल हायर्स फॉर द फॉर द यूआई यूएक्स डिजाइनर्स डेवलपर। तो ये आप माइंड में से चीज निकाल दो। बट हाँ, डीएसए कुछ लेवल तक इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज में एंटर करने के लिए, तो आप उस लेवल तक का पढ़ लो। बट आपको जो मजा डेवलपमेंट में आता है तो आप डेवलपमेंट कर लो। यस। लीड कोड का काउंट मैटर करता है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं लीड? रिक्रूटर्स के लिए नहीं मैटर करता, बट आपके लिए जरूर मैटर करता है, क्योंकि वो आपको एक उस लेवल तक ला देता है कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपार्ट फ्रॉम लीड कोड और एनीथिंग, अब आपका माइंड उस तरह डेवलप हो जाता है कि आप उस चीज को सॉल्व कर पाते हैं। रिक्रूटर्स को ये नंबर से कुछ मैटर नहीं करता कि आपने कितना लीड कोड सॉल्व करा है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे रिज्यूमेस भी देखे हैं जिनमें लीड कोड का मेंशन नहीं होता, लीड कोड की प्रोफाइल का लिंक मेंशन नहीं होता या अदर प्लेटफॉर्म्स के लिंक नहीं मेंशन होते, बट दे आर आल्सो इन द गुड कंपनीज। जैसे आपने बताया कि आपने डायरेक्टली कंपनी वेबसाइट से अप्लाई करा, तो आपके हिसाब से रेफरल का कुछ एडवांटेज रहता है या सेम ही रहता है? नहीं, यस, तो रेफरल का एक एडवांटेज रहता है। रेफरल इज ऑलवेज अ चेरी ऑन द केक। तो रेफरल काउंट करता है, मतलब अगर आप खुद से अपनी अपने रिज्यूमे को या अपनी प्रोफाइल को अप्लाई करते हो और वो रिजेक्ट हो जाती है, बट वो रेफरल के थ्रू एक कंसिडरेशन में दोबारा आ जाती है कि हाँ, दिस पर्सन ने इस पर्सन को रेफर किया है एंड देयर आर सम सेट ऑफ द नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स। जो बंदा रेफर कर रहा है उस बंदे ने उस पर्सन के साथ वर्क करा है या कैसे वर्क करा है या वो कैसे जानते हैं। तो देयर आर सम सेट ऑफ पैरामीटर्स एंड नॉर्म जो कि एक रेफरल वाले पर्सन को फिल करके रेफर करना होता है। एंड वो मैटर करता है कि रेफर आप कर रहे हो। सो आपके हिसाब से टियर 3 का डिसएडवांटेज रियल है क्या, या कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपका कॉलेज टियर 1 है, टियर 2 है या टियर 3 है? So this is very like a question for me.
सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो टीयर 3 में डिसएडवांटेजेस हैं वो सिर्फ एक्सपोजर के डिसएडवांटेजेस हैं, बिकॉज एट द एंड इट डजेंट मैटर कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से हुई है। बट हाँ, जो इनिशियल आपके डिग्री के पीरियड में आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाता, वो एक चीज काफी मैटर करती है, जो कि मैंने भी फेस करा है। क्योंकि जो बड़े बड़े टीयर 1 कॉलेजेस हैं या टीयर 2 कॉलेजेस भी हैं, तो उनमें एक स्पेशल चीज होती है कि वहाँ अदर अदर कैंप्स भी लगते रहते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दैट आई एम गुड इन दिस थिंग, दैट आई एम गुड इन दिस थिंग। बट टीयर 3 कॉलेजेस में ये चीज का एक्सपोजर नहीं रह पाता। तो मेरा कैंप से मतलब है कि सम कोडिंग कैंप्स लगते हैं या फिर कुछ हैकाथॉन्स होते हैं। आई नो टीयर 3 पे भी होते हैं, बट टीयर 3 में उस लेवल के नहीं होते। फिर देर आर सम म्यूजिक जैम्स एंड समथिंग आर्ट इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी स्केल अप करना पड़ता है। तो वहां पे आपको एक्सपोजर मिलता है और वहां पे आप एक चीज को पॉइंट कर सकते हो कि आई एम गुड इन दैट थिंग। So yes, at the end for a job point of view, it doesn't matter कि टीयर 1 टीयर 2 या टीयर 3, बट हाँ वो मैटर करता है कि टीयर 1 में आपके गूगल या अदर मेटा लाइक कंपनीज या मैंग लाइक कंपनीज डायरेक्टली कॉलेजेस में अप्रोच करती हैं, बट टीयर 3 या टीयर 2 में आपको खुद से एक इनिशिएटिव लेके वो अप्लाई करना पड़ता ओके, मतलब अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैटर नहीं करता कि आप कौन से है। कॉलेज से हो। इनिशियली हाँ, कॉलेज लाइफ में एक्सपोजर के पर्सपेक्टिव से ये मैटर करता है। यस यस। राइट। तो लास्ट में आप कुछ ऐसे रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो जिसको आपने रेफर करा हो अपनी प्रेपरेशन के लिए? सो यस, लीड कोड के कोडिंग क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा, और अगर मैं किसी सॉल्यूशन में आई नीड टू टेक हेल्प, तो आई गो ऑन यूट्यूब एंड फाउंड सम गुड चैनल्स लाइक जैसे कि नीट कोड है या कोड हेल्प बाय लव बब्बर। तो उनसे मैंने रिसोर्सेज काफी उनके फॉलो करे हैं। बट आज की डेट में हमारे पास एआई भी है, तो हम एआई से भी हेल्प ले सकते हैं। एंड एआई मॉडल्स आर सो गुड टू एक्सप्लेन यू विद द डेली रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप उनको प्रॉम्प्ट कैसा दे रहे हो। अगर आप उनको प्रॉम्प्ट दे रहे हो कि टीच मी लाइक अ 5 year old kid with a daily household examples, तो वो आपको उस कोडिंग क्वेश्चन को या कोडिंग प्रॉब्लम को वैसे ब्रेक डाउन करके समझाएगा, विच आई हैव ऑल्सो डन दिस। एंड मुझे वो काफी चीज अच्छी लगी है कि यस। बट हाँ, मैंने सारे सॉल्यूशंस भी एआई से नहीं देखे, पहले खुद सॉल्व करता हूँ, बट जहाँ वो चीज को स्टक कर जाता हूँ तो फिर वहां हेल्प लेता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच आर्यमन, आपने बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। Thank you, Diksha, for this opportunity. Yeah, all the very best to all the viewers and all the very best to you as well. ओके, थैंक्स आर्यमन। Yep.